started. The chapter that we start today is called Chemical Equilibrium. In this chapter, we have some very simple things. ये chapter शुरू करना है ना? Chemical Equilibrium. Okay. To start out with this, we have a word, equilibrium. So, what do you understand by the word equilibrium? Balance. Stable. So, I believe you know the meaning of the word stable. And obviously, I'm not talking about astable. So, what is the meaning of this word stable? बोल भाई, पता है तुम्हें? जल्दी से बोलो. Stable word. मैं equilibrium लिखा, chemical equilibrium नहीं लिखा. हाँ, definition लिखी हुई है तुमने. नहीं लिखी है. thermodynamics chapter किया. तो thermodynamics chapter में stable word आया था. आया था. Stable is a situation or a state which a system does not want to change. It is a state which a system would try to regain if disturbed. That is what the term called stable. और जब भी हम word stable की बात करते हैं, then in that case सिर्फ ये कह के काम नहीं चलता कि ये stable है, low energy होगा. नहीं. Stable situation dependent है, condition dependent है. अगर मैं condition change कर देता हूँ, then in that case stability बदल जाती है. कहीं पे कोई चीज stable हो सकती है, कहीं पे कोई दूसरी चीज stable हो सकती है. जैसे कि अगर मैं water की बात करता हूँ, तो water को अगर मैं temperature change करता चला जाऊँ, तो उसकी stability बदलती चली जाती है. जैसे अगर मान लीजिए I take water at -10 degrees Celsius, then in that case it's not going to be liquid water, it is not going to be the gaseous water, but it is going to be the solid water which is going to be stable. अगर मैं किसी तरीके से वो कोट काट के अगर मैं उसको लिक्विड वाटर बनाने की कोशिश भी करूं, then in that case also वो लिक्विड वाटर अगर मैं उस टेम्परेचर पे डालता हूं तो वो सॉलिड वाटर की तरफ मूव कर जाएगा. On the other hand, if I have a temperature between 0 to 100 degrees Celsius, then in that case the liquid water is going to be stable, not the solid, not the gaseous. और अगर मैं टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर करता हूं, then in that case gaseous water will become stable rather than the solid or the liquid. And in that also, if I have water at a temperature, let's say 105 degrees Celsius, and I increase the pressure on it, then again the liquid water can become stable. I think ये आपको शायद पता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते चले जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. तो प्रेशर, टेम्परेचर कंडीशन और भी बहुत सारी कंडीशन है. फिलहाल तो हम सिर्फ प्रेशर, टेम्परेचर कंडीशन की बात कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू दैट द वर्ड स्टेबिलिटी, द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी विल कीप ऑन चेंजिंग. किसी समय कुछ होगा, किसी समय कुछ होगा. तो इसीलिए बिफोर वी डिफाइन स्टेबिलिटी वी हैव टू डिफाइन द कंडीशंस. एंड under the given set of conditions, the most stable state of the system is called equilibrium. ठीक है. Equilibrium is a situation where all the forces acting on the system, whatever they might be, किसी भी तरह के forces, यहाँ तक कि अगर concentration gradient है, मतलब concentration में difference है, वो भी एक तरह का force है. So pressure, temperature, all kind of forces have balanced each other. So the force acting on the system, the net force acting on the system is 0. Where's your uncle? ठीक है. So that is what we term as equilibrium. ठीक है. अब इक्विलिब्रियम के दो तरह होते हैं, दो तरह के इक्विलिब्रियम हैं. एक कहलाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है. स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज द वन इन विच नो चेंज, no net change takes place and there is no instantaneous change also. ठीक है. A system in which there is no instantaneous change is termed as
स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब है कि हम कितने ही छोटे पॉइंट की बात करें, कितने छोटे पॉइंट इन टाइम की बात करें, उसमें किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा। इट इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज। जैसे अगर मान लीजिए ये बॉटल यहां पर पड़ी हुई है, बी वेरी क्लियर इट्स नॉट मूविंग, तो इस वजह से यहां पर अगर मैं कितने ही छोटे टाइम इंटरवल की बात करूं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो दिस इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, static equilibrium in general is with the substances which have a single point, which can be described by a single point. ठीक है, यहां पे बॉटल बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन इसके हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करके कह सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट विच वी नीड टू रेफर टू। तो ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ऑन द अदर हैंड, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज द वन इन विच देयर आर इंस्टेंटेनियस चेंजेस। मतलब कि अगर छोटे टाइम इंटरवल की बात करें तो उसमें हमें चेंज नजर आएगा, बट the change, overall change over a period of time is zero. So the net change is zero. Those are termed as dynamic equilibrium. ठीक है, definition लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए static equilibrium। The equilibrium in which there is no instantaneous change. The equilibrium in which there is no instantaneous change. That is, there is no change for even an insignificant interval of time. There is no change even for an insignificant interval of time. That is termed as static equilibrium. Okay? These equilibriums are for the systems. These equilibriums are for the systems which can be defined as a single point. Defined as a single point. Okay? So this is what we term as the static equilibrium. Now we talk about dynamic equilibrium. Okay? An equilibrium in which there is a continuous change. An equilibrium in which there is a continuous change such that the net change becomes zero. There is a continuous change such that the net change becomes zero. Is termed as a dynamic equilibrium. ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि चेंज लगातार हो रहा है, पर वो इस तरीके से हो रहा है कि एक चेंज दूसरे चेंज को कैंसिल कर रहा है। तो ओवरऑल चेंज यानी कि अगर ओवरऑल एक टाइम गैप में अगर देखा जाए विद इन अ लेंथ ऑफ टाइम, तो कोई चेंज होगा नहीं। फॉर अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट अस से हमारे पास एक पेंडुलम है, a bob hanging from a thread. Now this is hanging from a thread. ये thread जरा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा बना देते हैं। A bob hanging from a thread. Now अगर ये यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है, then in that case the net force acting on it is zero and there is no net change or no change taking place even for an instant. तो ये एक static equilibrium है। लेकिन अगर मैं इस बॉब को एक हल्का सा पुश दे देता हूँ, then in that case it starts oscillating. अब अगर ये ऑसिलेट करता चला जा रहा है तो इसके हर इंस्टेंट पे चेंज आ रहा है। इट इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग, इसकी पोजीशन चेंज होती चली जाएगी। लेकिन अगर एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसके अंदर नेट चेंज जीरो है, कोई चेंज ही नहीं है। तो अगेन इट इज एन इक्विलिब्रियम, बट इट इज गोइंग टू बी अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। फाइन, ये तो सिंगल पॉइंट सिस्टम था, तो इसके अंदर डायनामिक और स्टैटिक दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक मल्टी पॉइंट सिस्टम होता है एंड पॉइंट द पार्टिकल्स आर मूविंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो बी वेरी क्लियर, चाहे वो इंडिपेंडेंट मूव कर रहे हैं, चाहे वो कुछ कोशिश ना करें, लेकिन फिर भी एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है।
अपने आप हो जाता है, चाहो या ना चाहो। उस केस में पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, हर पार्टिकल में चेंज कंटिन्यूअसली आ रहा है, लेकिन एक पार्टिकल का चेंज दूसरे पार्टिकल के चेंज से कैंसिल हो जाता है, एंड देन इट बिकम्स अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक मल्टी पार्टिकल सिस्टम in which the particles are moving independent of each other or changing independent of each other, the equilibrium is always dynamic. वो कभी static नहीं हो सकता, ठीक है। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो the minimum number of particles that we ever deal in chemistry is more than the entire population in this world. Always. Minimum number is more than the total population. क्योंकि total population कितनी है? लोग कहते हैं 7 billion है। 7 billion is what? हम अगर एक मोल की बात करते हैं तो मोल is 6 lakh billion. कितना छोटा पार्टिकल ले लोगे? कितना छोटा अमाउंट ले लोगे? 0.00001 मोल मेजर भी नहीं कर पाओगे। And that also is going to have a billion particles. तो इसलिए जब भी हम केमिस्ट्री में किसी भी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का तो कोई मतलब ही नहीं है। And mind it, these billion particles are moving exact independent of each other. इनका एग्जिस्ट कोई रिलेशन, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो इस वजह से केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। ऑल केमिकल इक्विलिब्रियम आर डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के क्लासिफिकेशंस की। आमतौर से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हम कहते हैं फेज इक्विलिब्रियम और दूसरा एक नॉर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम है। जब हम फेज इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये बहुत सिंपली डिफाइन किया जा सकता है। दीज आर द इक्विलिब्रियम इन विच द लेफ्ट हैंड and the right hand side of the equation have the same chemical composition but they have different phases. अच्छा, phase और state में थोड़ा सा फर्क है। I think I have already described what is a phase and what is a state. Phase is a part of the system having definite boundary within which the various properties such as temperature, pressure, density, refractive index, composition, they remain a constant. That is, phase is a continuous part of the system जहां पे कोई abrupt change नहीं आ रहा, कोई abrupt break नहीं आ रहा। आप वहां पे कहीं पे बाउंड्री बीच में कहीं डिफाइन नहीं कर सकते, उसे फेज कहते हैं। Clear? On the other hand, a multi-phase system is where we can define a boundary. ठीक है, फेज स्टेट से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर स्टेट डिफरेंट है तो वेरी ऑब्वियसली फेज डिफरेंट है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टेट सेम होती हैं लेकिन फिर भी फेज डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, लेट अस से हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास वाटर है और हमारे पास बेंजीन है। वाटर एंड बेंजीन बोथ आर कलरलेस लिक्विड्स, दोनों की स्टेट सेम है, लेकिन उनको अगर हम मिक्स करते हैं देन इन दैट केस दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। और इस वजह से जब वाटर और बेंजीन के स्टेट की बात की जाती है तो इसके बीच में एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री नजर आती है, एंड दैट इज हाउ इट बिकम्स अ टू फेज सिस्टम। यहां की प्रॉपर्टी और यहां की प्रॉपर्टी इज डिफरेंट ऑल्दो दे आर लिंक्ड। इस वजह से फेज इज अ लिटिल मोर देन स्टेट, ठीक है। अब इसमें देखो, एक फेज इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। लेट अस से हम इस सिस्टम के अंदर एक आयोडीन क्रिस्टल डाल देते हैं। आयोडीन बहुत स्लाइटली अमाउंट में पानी में सॉल्युबल है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बेंजीन में सॉल्युबल है। तो यहां पर ये बेंजीन लेयर वायलेट कलर्ड हो जाएगा क्योंकि आयोडीन वायलेट कलर्ड है, ठीक है। और साथ ही साथ इस पानी वाले लेयर में भी हल्का सा वायलेट टिंज आ जाएगा। अब ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल बेंजीन में डिसॉल्व हो गए हैं और जो आयोडीन मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व हो गए हैं, ये वाटर का वाटर में और आयोडीन का आयोडीन में नहीं रहेगा, ये कांटेक्ट में एक दूसरे के। तो हो सकता है कि आयोडीन के मॉलिक्यूल जो बेंजीन लेयर में है
वो पानी में मूव करना शुरू कर दें, और पानी में जितने हैं वो बेंजीन में मूव करना शुरू कर दें। तो यहां पे बेंजीन और वाटर लेयर में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। एंड इट सो हैपेंस that whatever is the number of iodine molecule moving from benzene to water, exactly the same molecule will start moving from the water to benzene. कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों में कंसंट्रेशन एक नॉन चेंजिंग हो जाएगा। आई वोंट से, देखो द एक्चुअल वर्ड इज कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट वर्ड स्टूडेंट को इस बात में कंफ्यूज कर देता। कांस्टेंट से उनका मतलब, उनको दिमाग में आता है कि एक पर्टिकुलर नंबर है जो कांस्टेंट है, और वो हर जगह उस नंबर को लगाते चले जाते हैं, तो वो कांस्टेंट को इक्वल समझ लेते हैं। कांस्टेंट डज नॉट मीन इक्वल, इसलिए मैं वर्ड कांस्टेंट नहीं यूज करता, मैं अनचेंजिंग यूज करता हूं। द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन in benzene and concentration of iodine in water become unchanging, although there is a continuous movement of iodine molecule between water and benzene. Is it clear? ठीक है, फाइन। अगर मैं यहां पे concentration of iodine in water को कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन से डिवाइड कर दूं, तो फॉर अ गिवन टेम्परेचर ये रेशियो कांस्टेंट है। इसका आयोडीन के अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा अमाउंट डालोगे तब भी सेम रेशियो बनेगा, ज्यादा अमाउंट डालोगे तब भी सेम रेशियो बनेगा। ये रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर। अब इस रेशियो को कहा जाता है पार्टीशन कोएफिशिएंट, या फिर इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और पार्टीशन कोएफिशिएंट है, दिस इज द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास फूल पत्तियां हैं, ठीक है। Now these are substances, they contain certain essential oils which are very costly, ठीक है। अब अगर हम इसको पूरे को जूस बना देंगे, तो जूस बनाने पर हमारे पास जो जूस आएगा उसके अंदर इन सब्सटेंसेस की क्वांटिटी माइक्रोग्राम्स में है, और पानी कितना है, टब भर के। कैसे निकालें इनको, सेपरेट कैसे करें? अगर हम इसको डिस्टिल करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि जब तक पानी पूरा का पूरा डिस्टिल होगा तब तक इन सब्सटेंसेस की नेचर बदल चुकी होगी। इतनी देर तक हीट करोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम सीधा सीधा पानी को इवापोरेट करने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से, तो इतना स्मॉल अमाउंट है कि इतना पानी उड़ाते 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 पानी के अंदर जो दूसरे कंपोनेंट है वो और ज्यादा आ जाएंगे। तो फिर क्या करते हैं, इस पूरे सॉल्यूशन को थोड़े से अमाउंट ऑफ ईथर के साथ शेक कर देते हैं। नाउ दीस सब्सटेंसेस हैव अ वेरी हाई सॉल्युबिलिटी इन ईथर, पानी में नहीं है, तो बहुत सारा पानी में से निकल के ईथर में चला जाता है। ईथर में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब हमें जहां वो लीटर्स ऑफ वाटर को इवापोरेट करना था, वहां पे हमें मिलीलीटर्स ऑफ ईथर को इवापोरेट करना पड़ता है। एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू सेपरेट दीज एसेंशियल ऑयल्स फ्रॉम वाटर, डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और पार्टीशन कोएफिशिएंट। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। The distribution coefficient of iodine in carbon disulfide CS2 in comparison to water is 600 or be very clear, this distribution coefficient is going to be a dimensionless quantity, ratio, ठीक है। आगे लिखिए, what will be
the concentration of iodine, what will be the concentration of iodine in water if its concentration in carbon disulfide, in contact with water, carbon disulfide is CS2, H2 नहीं, disulfide है, CS2, in contact with water is 2.1 gram per centimeter cube. Simple सा question, answer करो. Molar mass of iodine is 127 gram atomic mass है उसमें. वैसे देखो प्लीज, मैंने सिर्फ देने के लिए ये वैल्यू दी है, इसकी जरूरत नहीं है. मुझे पता है तुम उसमें कंफ्यूज होने वाले थे. अभी मोलर मास की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में. ये अगर रखा है क्या कर रहा है ये देख, C in CS2 upon CH2O is equal to 600. समझे? ठीक है, तो concentration in H2O is equal to concentration in CS2 divided by, समझे? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? हाँ नहीं, पढ़ो पूरा. If its concentration in CS2 in contact with water is 2.1 gram per centimeter cube, so it is concentration in carbon disulfide. ठीक है, और contact with water बोलना जरूरी है क्योंकि तभी इक्विलिब्रियम आएगा. क्लियर? ये है पार्टीशन कोएफिशिएंट. ये एक छोटा सा एग्जांपल है फेज इक्विलिब्रियम का. ठीक है, आयोडीन दो फेजेस में है, एक वाटर फेज है, एक कार्बन डाइसल्फाइड फेज है. इज इट क्लियर? इसको हम एक्वस नॉन एक्वस फेज भी बोलते हैं, या एक्वस ऑर्गेनिक फेज, या पोलर नॉन पोलर फेज, कुछ भी बोल दो, बट अल्टीमेटली इट इज टू फेज सिस्टम. ठीक है, ओके. जब हम आगे फेजेस की बात करते हैं तो यहां पे कुछ और फेजेस भी हैं. ठीक है, एंड व्हाट दोस फेजेस आर. हमारे पास एक फेज है सिंपल सा, एक है हमारे पास लेट अस से पानी है, ये पानी है. ठीक है, और यहां पर ये लिक्विड वाटर है, ये वेपर है. इस वेपर और लिक्विड के अंदर एक इक्विलिब्रियम है. ठीक है, दिस इज अ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. This is a liquid vapor equilibrium. ठीक है? Okay. What's the difference between a vapor and a gas?
दोनों वर्ड सुने हैं ना? वेपर नाम सुना है ना? कोई और किसी का और का वेपर नहीं हो सकता, सिर्फ पानी का ही वेपर होता है। डिफरेंस बिटवीन अ वेपर एंड अ गैस। सर वेपर में सिर्फ एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। वेपर एंड अ गैस। What's the difference between a vapor and a gas? कोई भी बताओ। हाँ, कोई भी गैस टेम्परेचर लो होने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्टेट, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। So, नहीं पता? Vapor converts to a liquid on increasing the pressure. Gas will not convert to a liquid whatever be the pressure, keeping the temperature constant. That is the difference between a gas and a vapor. ठीक है? सीधी सीधी भाषा में अगर टेक्निकल लैंग्वेज बोली जाए तो सीधी भाषा थी, टेक्निकल लैंग्वेज बोली जाए तो बोल a substance above the critical temperature is a gas. A gaseous system below the critical temperature is vapor. ठीक है? क्लियर? समझ आई बात? लिख लो। Difference between vapor and a gas. गैस लिखिए पहले। A substance, और यहां पे मुझे लिक्विड सॉलिड गैस बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब्सटेंस बोलूंगा क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर सिर्फ गैसियस स्टेट ही एग्जिस्ट करती है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है? A substance above its critical temperature, a substance above its critical temperature is termed gas. ठीक है? फुल स्टॉप। अब वेपर की डेफिनेशन लिख लीजिए। A gaseous substance below its critical temperature, a gaseous substance below its critical temperature is termed vapor. Full stop. A vapor converts to a liquid when the pressure is increased. A vapor converts to a liquid when the pressure is increased without any change in temperature. ठीक है? क्लियर? अब इसको थोड़ा सा हम करेंगे। देखो ये जो टॉपिक मैं तुम्हें करवा रहा हूँ वो आज सच कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये कोई करवाता नहीं है क्योंकि कोर्स में नहीं है, और उसके बाद जब इसकी जरूरत होती है तो लोग ये कहते हैं तो तुम्हें आता ही है। ये वो टॉपिक है, वो थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुन लेना। ठीक है? हम जब यहाँ पे वेपर और लिक्विड की बात कर रहे हैं, हम लिक्विड, सॉलिड और गैसियस स्टेट की बात करते हैं। ठीक है? Solid is a state in which the attractive forces between the constituent particle is so high that the particles cannot show any kind of movement other than the vibration at the mean position. Hence, the relative position of the particles and the average distance between them remains a constant. That is what we call as a solid. Because the particles cannot change their relative position, that is why its shape is fixed. As the particle cannot change the average distance, the volume is fixed. A solid can have any number of free surfaces. Okay? Minimum obviously is 0, maximum could be anything.
So that is what we term as a solid. Okay? A liquid is a substance in which the attractive forces keep the particle at a constant average distance, but the thermal motion is able to move the particles relative to each other. Hence, the shape will fit according to the bottom of the container. Okay? It will have exactly one free surface. That is the maximum it can have. Zero is also possibility of पूरा ढक्कन लगा देते तो कोई free surface नहीं होगा. लेकिन maximum it can have one free surface. Since the particles have a capacity to move relative to each other, hence it does not have a constant shape. But since they cannot move away from each other, the average distance would remain a constant. Hence, they have a constant volume. That is what we term as a liquid. Okay? On the other hand, when the thermal motions completely overcome the attractive forces such that the particles move absolutely independent of each other, that is, they move relative to each other and their average distance has a capacity to change, then it becomes a gas. Since the particles can move any distance to each other, the gases do not have a definite volume. And obviously, they do not have a definite shape. They occupy the shape as well as the volume of the container they are put into. Whenever we say the volume of a gas, it is not the volume of the gas, it is the volume of the container in which gas is put. ठीक है? Gases के particles में attractive forces नहीं होते. और अगर होते भी हैं, तो thermal motion उसको completely overcome कर जाती है. So that is the difference between a solid, liquid and a gas. ठीक है? अब यहां पर इस कंटेनर की बात करते हैं. ठीक है? जब हम इस कंटेनर की बात करते हैं तो ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर तीन तरह के मॉलिक्यूल्स हैं. Did I discuss it before with you about this? A liquid container, a liquid in a container has three kind of molecules. Okay, now listen it clearly. A liquid in a container has three kind of molecules, and I'm talking about a pure liquid. तभी उसमें तीन तरह के molecules हैं. ठीक है? कौन-कौन से molecules? एक molecule right in the bulk. ये जो मॉलिक्यूल बल्क के अंदर है, ये हर तरह के मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड है. अब ये मत बोलना कि सर ये रिएक्ट कर रहा है, कौन सा बॉन्ड है. बेटा अट्रैक्टिव फोर्स है तभी तो वो लिक्विड है. एंड बी वेरी क्लियर, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नॉट गोइंग टू बी द कोवेलेंट बॉन्ड, इट्स नॉट गोइंग टू बी द आयनिक बॉन्ड. एक केस में मेटलिक बॉन्ड हो सकता है, दैट इज मर्क्यूरी. एंड मोस्ट ऑफ द अदर केसेस इट कुड बी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, डायपोल इंटरेक्शन और द मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि बाकी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो गए. तो इनमें से तीन में से को होगा, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, तभी वो लिक्विड है. ठीक है? लेकिन यहां पर चारों तरफ से, छह तरफ से, इनफैक्ट ऑल द डायरेक्शंस इन द स्फीयर, दिस पार्टिकल इज बीइंग अट्रैक्टेड. जिस पार्टिकल के साथ अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज्यादा होता है, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है. More the attractive force, less is the energy of the system and the particle. So this particle is going to have a very low energy. This is the most stable particle. Okay? Then there is a second kind of particle. The second kind of particle is the particle near the wall of the container. जब मैं wall of the container की बात करता हूँ, then in that case इस particle के ऊपर दो तरह के force act कर रहे हैं. एक force act कर रहा है between the particle and the particles of the liquid, that is the particles of the same kind. On the other hand, there is a force which is acting between the particle and the particles in the wall of the container. This is the attractive force between the particles of different kind. Okay? The attractive force between the particles of the same kind are termed as cohesive forces. Whereas the attractive force between the particles of different kind is termed as adhesive forces. ठीक है? Definition लिख लीजिए. Cohesive forces. The attractive forces. Cohesive forces. The attractive forces between the particles of the same type are termed cohesive forces. Term cohesive forces. ठीक है? अगला लिखिए adhesive forces. The attractive forces between
the particles, the attractive forces between the particles of different type are termed adhesive forces. ठीक है. Now हमारे पास जो सिचुएशंस होती हैं उनमें कहीं पे एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग हो सकते हैं, कहीं पे कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग हो सकते हैं. नाउ लेट अस सी अगर दोनों में से क्या हो तो उसका असर क्या होगा. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल वेयर द कोहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस. ठीक है. अब यहां पर हमारे पास लिक्विड है विच इज नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर. द कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स. तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड है they will try to be with the particles of the liquid rather than with the container. ठीक है. तो इन particles के ऊपर एक नेट फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा. ठीक है. तो इस लिक्विड की एक टेंडेंसी होगी इस कंटेनर से अलग होने की, दूर हटने की. अगर वो दूर हटने की कोशिश करेगा तो यहां पर जो इसका ऊपर का लेयर है ये लेयर ऐसा बन जाएगा. मतलब कि अगर मैं इसको नैरो ट्यूब में डालता हूं तो आई विल गेट दिस काइंड ऑफ अ लेयर. ठीक है. इस लेयर को कहा जाता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस. So the liquid which is not attracted to the walls of the container will form a convex meniscus. ठीक है. A typical example of this kind is mercury in a glass container. Mercury ग्लास के साथ अट्रैक्टिव फोर्स नहीं बनाता तो उसका मेनिस्कस ऐसे जाएगा. ठीक है. ऐसा लिक्विड अगर इस कंटेनर में रखा जाए तो वो कंटेनर के साथ स्टिक नहीं करेगा. अगर आप कंटेनर में से लिक्विड को ऐसे उल्टा कर देते हो तो लिक्विड बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसमें से निकल जाएगा. देयर विल नॉट बी इवन अ ट्रेस ऑफ द लिक्विड स्टिकिंग टू द कंटेनर. तो ऐसा लिक्विड कंटेनर को वेट नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा. So this will become a non-wetting liquid. Is it clear? ठीक है. तो ये होता है असर अगर कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. चलिए उल्टे केस की बात करते हैं. Where the cohesive forces are weaker as compared to adhesive forces. तो अब क्या होगा. लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू बी विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ स्टिक करने की कोशिश करेंगे, चिपकने की कोशिश करेंगे. और अगर चिपकने की कोशिश करेंगे then in that case this liquid molecule will rise ऐसे. ज्यादा चिपकने की कोशिश करेगा और फिसलेगा, चिपकेगा. तो उस केस में अगर मैं इसको नैरो कंटेनर में डालता हूं then in that case the layer level would be like this. This is called a concave meniscus. ठीक है. Here, a concave meniscus tells us that the attractive force between the liquid molecules and the walls of the container are more. ठीक है. ठीक है. So they are more, and if they are more, then in that case it will stick to the walls of the container. और ऐसे केस में अगर आप कंटेनर के अंदर से इस लिक्विड को निकाल देते हैं, then you will find कि इस कंटेनर के ऊपर लिक्विड का एक लेयर चिपका रह जाएगा. The liquid will stick to the walls of the container, or you may say that the liquid wets the container, and so it will be termed as a wetting liquid. ठीक है. अब यहां पे एक बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन आता है. Why is water wet? पानी गीला क्यों होता है या पानी गीला क्यों करता है? और द सिंपल सा आंसर अब आएगा
That is, in the case of water, the adhesive forces dominate over the cohesive forces. Hence, when water is put onto a surface, it sticks to the surface or it wets the surface. Clear? लेकिन हाँ, हम water को non-wetting बना सकते हैं. बेटा, ultimately it is the attractive force between the surface and the liquid. तो अगर हम सरफेस चेंज कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हर सरफेस के साथ वाटर का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा ही होगा. अब जैसे कि हम नॉन स्टिक कुकवेयर की बात करते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर के ऊपर अगर पानी की बूंद डाल के आप खेलोगे ना, तो पानी की बूंद जिस तरीके से मूव करती है वो कहीं पे लेवल नहीं छोड़ती, वो स्टिक नहीं करती. तो जस्ट थिंक कि अगर हाथ के ऊपर मर्करी लेके ऐसे मूव करोगे ना, तो उसका जो अपीयरेंस आता है वो बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे नॉन स्टिक कंटेनर के ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर का आता है, बिकॉज इट डज नॉट स्टिक टू इट. Is it clear? So this is what we call as cohesive and adhesive forces, and this is what we call as the attractive force between the molecules of liquid near the wall of the container. तो देखो इसके ऊपर जो forces act कर रहे हैं वो different है. So this is the second kind of molecule. अब आ जाते हैं हम third kind of molecule पर. And third kind of molecule is the molecule on the surface of the liquid. जब हम surface of the liquid की बात करते हैं, then in that case, surface of the liquid के नीचे water molecules हैं, ऊपर गैशियस मॉलिक्यूल है. लेकिन गैशियस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू लिक्विड इतनी कम है कि हम उसके अट्रैक्टिव फोर्स को कंसीडर ही नहीं कर सकते. तो हम ये बोल सकते हैं कि द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड फेसेस और इट एक्सपीरियंसेस ओनली अ सिंगल डायरेक्शनल फोर्स एंड दैट इज टुवर्ड्स द बल्क ऑफ द लिक्विड. ठीक है? इस सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो जीरो नहीं है. ठीक है? क्लियर? तो ये जो बल्क ऑफ द लिक्विड है ये इस मॉलिक्यूल को अंदर खींचने की कोशिश करता है. अब अंदर मॉलिक्यूल से जिसको ब्लॉक कर देते हैं. तो यहां होता ये है कि इस फोर्स के चलते ये जो सरफेस है इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं काफी पास आ जाते हैं. It is something like you want to get into a hall, but the people don't allow you to. अब वो अंदर जो है ना व्यक्ति जिसको देखना चाह रहे हो आप, उसके चक्कर में वो जो दरवाजा है ना, दरवाजे में बहुत भीड़ बढ़ जाती है. The people become close knit with each other. ठीक है? So this close knit molecule, they form a kind of a membrane on the surface of the liquid. There is an excess energy on the surface. There is an excess force on the surface. ठीक है? There is a tension on the surface. ठीक है? This extra energy per unit area. Extra energy क्यों है? Because the molecules are facing unbalanced force. तो जितना force कम face करेंगे उतनी energy ज्यादा होगी. So this unbalanced energy or extra energy on the surface, that is energy per unit surface, or an extra force acting per unit length is termed as surface tension. ठीक है? लिख लीजिए डेफिनेशन. Surface tension. The extra energy per unit area. The extra energy per unit area, or an extra force per unit length acting on the surface of a liquid, due to a difference in energy between the molecules on the surface and the bulk is termed surface tension. Okay? Since the molecules on the surface have a higher energy and no system wants to have the high energy, that is why every system tries to keep the surface area minimum.
और यही रीजन है कि अगर आप एक लिक्विड को फ्री फॉल करने दें तो इट विल टर्न आउट टू बी अ स्फीयर। इस स्फीयर का फॉर अ गिवन वॉल्यूम अ स्फीयर हैज अ मिनिमम सरफेस एरिया। तो इस वजह से वाटर की ड्रॉपलेट स्फीयर होती है। ठीक है, so this is the term called surface tension. ठीक है, ओके। नाउ यहां पर ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है, फाइन। और लिक्विड के जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं बल्क में, वो सब की एक काइनेटिक एनर्जी है। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और ये जो बल्क लिक्विड का मॉलिक्यूल ऊपर है सरफेस पर, उसका भी टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कम है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल इन द बल्क दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मूव करते करते दे कीप ऑन स्ट्राइकिंग विद ईच अदर। और ये मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि हर सिस्टम के अंदर देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन इन द काइनेटिक एनर्जी और द टेम्परेचर थ्रू आउट द बल्क। तो हर मॉलिक्यूल इधर से उधर मूव करता है रैंडमली। अगर हम यहाँ पे एक हल्के पार्टिकल को सस्पेंड कर दें, लो मास पार्टिकल को सस्पेंड कर दें, तो लो मास पार्टिकल एक रैंडम मोशन शो करना शुरू कर देगा। दिस रैंडम मोशन ऑफ अ लो मास पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड due to the constant bombardment of the molecules of the fluid on the particle is termed Brownian motion. ठीक है, इसे ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। फाइन, अच्छा, ब्राउनियन मोशन तो अलग चीज है, देखने का तरीका है कि एक पार्टिकल डाल दो, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देती। अब ये जो पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, करते करते दे हैव अ कैपेसिटी टू स्ट्राइक द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। जब ये सरफेस मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करते हैं, देन इन दैट केस दे माइट transfer some of their energy to the molecule on the surface. ठीक है, अब जैसे ही वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, इस पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी एंड देयर इज अ स्मॉल चांस कि ये बाकी सारे मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर दे। अगर ये मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक कर देगा, तो इट इज गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम देम and it will turn into the gaseous phase. Okay? When the surface molecule gets an extra energy from the bulk, it breaks all the remaining attractive forces and moves into the gaseous phase. Okay? Conversion of a liquid into the vapor is called vaporization. Conversion of a liquid into vapor is termed vaporization. ठीक है? This is the vaporization of the surface molecules. ठीक है? It is termed evaporation. ठीक है? Clear? There is a term called vaporization. ठीक है? And vaporization में एक part है evaporation. ठीक है, दोनों चीजें बोल देता हूं। वेपराइजेशन, द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स, द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स इज टर्म्ड वेपराइजेशन। ठीक है, सेकेंड, द कन्वर्जन ऑफ the surface molecules, the conversion of the surface molecules into vapors by taking energy from the bulk is termed evaporation. ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो मॉलिक्यूल था सरफेस पर, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी। ठीक है, और इसने इस बल्क में से एक एक्स्ट्रा एनर्जी गेन की और बाहर निकल गया।
तो हमने इस सिस्टम में से हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल को निकाल दिया। ठीक है, अब सोचो, आपकी क्लास है, आपकी क्लास का एक टेस्ट रिजल्ट है, देयर इज अ टॉपर, देयर इज अ लैगर, देयर आर मीडियोकर, एवरीवन। ठीक है, हमने आपकी एक क्लास एवरेज वर्कआउट की। अगर हम आपकी क्लास में से टॉपर को निकाल दें तो क्लास एवरेज कम होगी या ज्यादा? कोई डाउट इसमें? यहां पर हमने हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल को निकाल दिया, तो इस सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी या ज्यादा? कम। काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो अगर इस मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा? कम होगा। यानी कि एक स्टेटमेंट होती है ना, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर हमने इस सिस्टम को इंसुलेट नहीं कर रखा, अगर तो हमने इंसुलेट कर रखा है तो इवेपोरेशन विल कॉज कूलिंग, या फिर हम रैपिडली इवेपोरेट करें तो भी कूलिंग होगी। ठीक है, पर नॉर्मली अगर जैसे मान लीजिए एक पानी का गिलास यहां पे रख दिया तो इसमें इवेपोरेशन में कूलिंग नजर नहीं आएगी। कारण ये कि जैसे जैसे वेपर्स निकलते चले जा रहे हैं, एनर्जी कम होती जा रही है, सराउंडिंग सिस्टम से एनर्जी गेन करता चला जा रहा है, तो इस वजह से हमें कूलिंग नजर नहीं आता। लेकिन कूलर में क्यों नजर आता है? कूलर के अंदर वो रैपिडली इवेपोरेट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से कॉन्टिन्यूस तेज होती है, जितनी हीट वो गेन कर पा रहा है उससे ज्यादा हीट वो लूज कर रहा है, तो इसलिए इवेपोरेशन विल कॉज कूलिंग। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? हाँ, सफिशिएंट है। हाँ, हाँ, सही कह रहे हो। हाँ, करती हैं, दिक्कत क्या है इसमें? तुमने कभी पानी के ऊपर सुई को तैरते हुए नहीं देखा? कभी नहीं देखा? एक काम करना, घर जाना, टेक अ पीस ऑफ टिश्यू, जो टॉयलेट पेपर होता है ना, टिश्यू पेपर, वेरी हाई एब्जॉर्बेंट, ठीक है, वो वाला पेपर लेना, उसको पानी पे ऐसे ऐसे छोड़ देना, इट विल स्टिक टू द वाटर। ठीक है, टेक अ नीडल, स्विंग नीडल नॉर्मल, उसके ऊपर डाल देना टिश्यू के ऊपर। ठीक है, एंड वेट, दैट टिश्यू विल एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम हेवी। नॉर्मली वो नहीं डूबता, बुक में लिखा होता डूब जाएगा, डूबता नहीं है। नाउ व्हाट यू डू इज टेक अ स्टिक, पतली सी पेंसिल ले लेना, हल्का हल्का धीरे धीरे टिश्यू पेपर को ऐसे टच करना साइड से, नीडल को टच मत करना, एंड यू विल बी शॉक्ड, टिश्यू पेपर डूब जाएगा, नीडल तैरती रहेगी। वाटर की डेंसिटी से आयरन की डेंसिटी 7 टाइम्स है, इट शुड नॉट फ्लो। ठीक है, पर नीडल का मास कम है। Surface tension has nothing to do with density. Surface tension has to do with energy and mass. नीडल का मास इतना कम है कि वो नीडल तैरती रहेगी, जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक तैरती रहेगी, वो डूबेगी कभी नहीं। हाँ, तो सरफेस टेंशन वर्क कहां से कर रही है सर? तो सरफेस कहां है? ऐसा थोड़ी ना कि पानी डालोगे तो वो तैर के ऊपर आ जाएगी, तब नहीं आएगी। यहां पे हमने उसको, मैंने आपको टिश्यू पेपर के ऊपर रखने के लिए क्यों कहा? क्योंकि अगर आप नीडल को ऐसे पानी पे रखते हैं, देन इन दैट केस हल्की सी हाइट पर होती है वो नीडल, जैसे आप छोड़ते हो ना तो वो हाइट की मोशन की वजह से उसमें इतनी एनर्जी आती है कि सरफेस टेंशन तोड़ के अंदर चली जाती है। तो पानी है यार, अल्टीमेटली सरफेस टेंशन की भी एक लिमिट है, इनफाइनाइट थोड़ी ना है। इट इज ओनली द डिफरेंस इन एनर्जी, इट इज नॉट द टोटल एनर्जी। इज इट क्लियर? इसलिए ये मत सोचना भाई सर ने कहा था पानी पे सरफेस टेंशन, हम नहीं डूबेंगे, स्विमिंग पूल में चलने चले हैं। अबे नहीं चल पाओगे भाई, क्योंकि तुम्हारा मास, ये देखो इतना बड़ा मास है, और सरफेस देखो कितने से पैर पे होगे आप, इसलिए आप ऐसे डूब जाओगे। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा एक मजेदार बात बताओ, आप में से किसी ने स्विमिंग पूल में डाइव लगाई है? हाँ, अगर डाइव लगाते हो आपका बैलेंस स्टार्टिंग में बिगड़ गया ना, और आप ऐसे आने की जगह ऐसे आ गए,
मजा आ जाता है। खैर वो सरफेस टेंशन नहीं है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर, बट कुछ वैसा ही है। समझ आई बात? अच्छा, मॉस्किटो, मच्छर ना, बट एडवर्ड सुन रहे होगे ना, ये साफ पानी में पैदा होता है, ये गंदे पानी में पैदा होता है, ये ऐसे पानी में पैदा होता है, सारे मच्छर पानी में पैदा होते हैं। तुम्हें क्या लगता है मच्छर के एक्सीलेंट स्विमर्स हैं? कभी किसी मच्छर को पानी पे बैठे देखा है? बेटा वो पानी पे बैठता है, तैरता नहीं है। और अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे, अगर तुम्हारी आई साइट बढ़िया है या फिर तुम एक लेंस लेके देखोगे, तो तुम उस पैर के नीचे एक डिप्रेशन देख सकते हो। ऐसा लगता है जैसे वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन पे बैठा है, दिखती है सरफेस टेंशन। क्या हुआ? तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड था और आंसर भी बिल्कुल सीधा सीधा होता है ऐसा, लेकिन उसकी एक लिमिट है। क्या क्लियर? अगर मैं ऐसे पानी की छींटे डालता हूं, आपके कपड़ों पे गिर जाते हैं, कभी तुमने देखा नहीं कि कपड़ों के रेशम में पूरी ड्रॉप ऐसे अटैच हो जाती है कभी कभी? और कई बार ऐसा होता है कि पानी के छींटे पड़ जाते, ऐसे कर दो कपड़ा बिल्कुल सूखा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के रेशम में वो पूरी ड्रॉप ऐसे अटक जाती है। ओस की बूंद देखिए, मकड़ी के जाले में पड़ी हुई ओस की बूंद देखिए कभी? अल्टीमेट दिखती है। अगर देखनी है ना, अभी मौसम सर्दियों का आ रहा है, ठीक है, किस दिन सुबह सुबह गार्डन में घूमने निकल जाओ और ध्यान से नीचे देखो। नीचे जब देखोगे ना, तो छोटे छोटे मकड़ी के जाले दिखाई देंगे, और छोटे छोटे मकड़ी के जालों में ऐसी सुंदर ओस की बूंदें दिखाई देती हैं, ऑल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है? हाँ भाई, आंसर क्लियर? कोई डाउट तो नहीं रह गया? है तो पूछ ले। पार्टिकल सर उसके इंटरमॉलिक्यूलर सर जो फोर्सेस हैं हाँ सर वो बैलेंस्ड है। हाँ सर काफी ज्यादा होंगे सर फोर्सेस, मतलब जो भी है बैलेंस। अट्रैक्टिव फोर्स सर वो एनर्जी उसकी लो होगी सर जितनी, हाँ सर वो कौन सी वजह से एनर्जी पोटेंशियल, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। देखो तो एक पॉजिटिव पार्टिकल एक नेगेटिव पार्टिकल है, दे वांट टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो जितना वो पास आते चले जाएंगे उनकी एनर्जी लिबरेट होती चली जाएगी। दिस इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, और जो भी एनर्जी पोजीशन की वजह से है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है? तो यहां पे इन मॉलिक्यूल्स की जो लो एनर्जी है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द अदर मॉलिक्यूल्स, एंड दिस इज ड्यू टू द पोजीशन। यहां पे सरफेस की एनर्जी ज्यादा है बिकॉज ऑफ पोजीशन, तो पोटेंशियल एनर्जी है। बल्ब जो लेवल, वो जो कंटेनर के वॉल के साथ है, उसकी एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है, कम हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। अगेन दैट इज ड्यू टू पोजीशन, दैट्स पोटेंशियल। विद द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज काइनेटिक। ठीक है? इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? ठीक है? नाउ ये जो मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस है, ये वेपर फेज में जा रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है? इवेपोरेशन तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। वन, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। वेरी ऑब्वियसली सरफेस जितना ज्यादा होगा, सरफेस में मॉलिक्यूल उतने ज्यादा होंगे, एंड देयर चांसेस ऑफ मूविंग इनटू द वेपर उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है? सिंपल सा एग्जांपल है, अगर कपड़े सुखाने होते हैं तो यू स्प्रेड देम। एक गिलास में पानी भर के रखो, एक गिलास के पानी को नीचे फेंक दो, नीचे फेंका हुआ पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, गिलास का पानी शायद हफ्ते बाद 2 महीने तक इवेपोरेट ना हो। सरफेस एरिया। ठीक है? तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। नो कंफ्यूजन। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अरे भाई, अल्टीमेटली इवेपोरेशन में अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करना है ना, तो अगर पार्टिकल के अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगे तो उनको ओवरकम करना मुश्किल होगा, और अगर कम होंगे तो ओवरकम करना आसान होगा। ठीक है? तो नेचर ऑफ द सब्सटेंस, अगर नेचर ऑफ द सब्सटेंस बदल दी जाए तो इवेपोरेशन बदल जाएगा। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर।
भाई सीधी सीधी बात ये है कि टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे जैसे मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल को बढ़ाता चला जाऊंगा, द टेंडेंसी टू शिफ्ट द एनर्जी टू द सरफेस मॉलिक्यूल विल आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड सो द इवेपोरेशन विल इंक्रीज। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हमारे पास एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन, एंड ऑफ कोर्स द अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन विल डिपेंड ऑन टाइम। कपड़ा सूखने में टाइम लगता है, कपड़ा कितना सूखा डिपेंड करता है कितनी देर बाद आप उसको देख रहे हो, तो टाइम पे डिपेंड करता है। नाउ हम एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इवेपोरेशन per unit surface area per unit time। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है, द मोमेंट वी डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया एंड वी डिवाइडेड बाय टाइम, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया एंड टाइम। क्योंकि यूनिट सरफेस एरिया हो गया, तो अब जितना मर्जी सरफेस एरिया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूनिट। ठीक है। यूनिट टाइम हो गया, चाहे तुम 2 घंटे की बात करो चाहे 3 घंटे की बात करो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इतने सेकंड्स में या इतने मिनट में। ठीक है। तो इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया एंड टाइम। ठीक है। सो नाउ जब हम रेट ऑफ इवेपोरेशन की बात करते हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन नाउ इज डिपेंडेंट ऑन ओनली 2 फैक्टर्स। सिर्फ 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। 1, द नेचर ऑफ द लिक्विड, एंड सेकेंड टेम्परेचर। इसके अलावा आपको जो चेंज करना है कर दो। आप कंटेनर बड़ा कर दो, कंटेनर छोटा कर दो, उसकी शेप बदल दो, उसको ढक्कन हटा दो, उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, जो मर्जी करो, जब तक नेचर ऑफ द लिक्विड चेंज नहीं होती एंड द टेम्परेचर डज नॉट चेंज, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल नॉट चेंज। Is it clear? कोई कंफ्यूजन? बोलो, पूछो। सर जितनी कम एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल, वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। या देखो फिर वही बात आ गई ना। नहीं, पहली स्टेटमेंट ही गलत है। एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ स्टेबिलिटी, एनर्जी इज नॉट द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हर कंडीशन में डिफरेंट हो जाती है। किसी केस में ज्यादा एनर्जी स्टेबल हो जाती है, किसी केस में कम एनर्जी स्टेबल हो जाती है। जैसे कि वेपर की एनर्जी हमेशा लिक्विड से ज्यादा होगी, चाहे टेम्परेचर दोनों का सेम है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है ना कि वेपर के अंदर काइनेटिक एनर्जी तो चाहे सेम हो सकती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो वेपर की हमेशा ज्यादा होगी ही होगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी तो ज्यादा है ही। तो वेपर हैज अ हायर एनर्जी। लेकिन अगर पानी को मैं 100 डिग्री से ऊपर ले लूं तो वेपर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। बेटा 2 फोर्सेस है ना, एक एनर्जी है, एक एंट्रोपी है। एंट्रोपी इज डिसऑर्डर। तो हाई टेम्परेचर पे डिसऑर्डर ज्यादा स्टेबल है, लो टेम्परेचर पे लो एनर्जी स्टेबल है। तो इससे टेम्परेचर में डिफरेंस है, हर जगह दोनों में बैलेंस है। तो इसलिए ये कहना ही गलत हो जाएगा कि लो एनर्जी इज मोर स्टेबल कंडीशन। ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है? Is this clear? Fine? Okay. तो अब हमने एक वर्ड की बात की, रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इस सरफेस से द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज अ कांस्टेंट टिल द टाइम द टेम्परेचर रिमेन्स अ कांस्टेंट एंड द नेचर ऑफ द लिक्विड इज नॉट चेंजिंग। लिक्विड नहीं बदल रहा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट है। ठीक है। अब यहां से मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में मूव करते चले जा रहे हैं। ठीक है। हमने यहां पर इस लिक्विड के सरफेस पर एक ढक्कन लगा दिया है। ठीक है। अगर हम ढक्कन लगा देते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, तो ये जो वेपर्स बन रहे हैं दे विल नॉट बी एबल टू एस्केप आउट।
ठीक है। अगर ये एस्केप नहीं कर पाएंगे तो यहां पर इनका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। अब जब कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, then in that case these molecules will strike the walls of the container and the surface of the liquid. जब गैस मॉलिक्यूल्स सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो उससे जो जनरेट होता है उसे प्रेशर कहते हैं। गैस का प्रेशर यही तो है, मॉलिक्यूल्स आर स्ट्राइकिंग द सरफेस। किया था ना पूरा डेरिवेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, ठीक है, वो यही है। तो अब these molecules will generate a pressure on the surface of the container and the surface of the liquid, ठीक है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा और प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब होता ये है कि जब ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं तो there is a possibility that they might lose the kinetic energy and they might condense, ठीक है। There would be something called rate of condensation. Now this rate of condensation again depends on two factors. One, it depends on what is the liquid, nature of the substance. And second, it depends on concentration. It does not depend on temperature. Rate of condensation does not depend on temperature. It depends on the nature and it depends on the concentration, that is the pressure. Concentration, pressure interchangeable है, क्योंकि ये constant से change होगा ना, RT तो constant है। Is it clear? समझ आ रही है बात? तो जैसे जैसे ये यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता चला जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। द मोमेंट द रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं। So the number of molecules in the bulk that is above the liquid will become a constant. जहां number of molecule constant हुआ, उनका concentration constant हुआ, उनका pressure constant हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कितने मर्जी टाइम के लिए रख लो, ये pressure constant है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पंगे लेते हैं। पंगे क्या लेते हैं? लेट अस से इस लिड को एक मूवेबल पिस्टन बना देते हैं। और व्हाट वी डू इज सडनली इस पिस्टन को नीचे मूव कर देते हैं। जैसे ही हम इस पिस्टन को नीचे मूव करेंगे, एकदम से वेपर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। याद रखना, इससे रेट ऑफ इवेपोरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज है। चेंज क्या होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ जाएगा। अब कंडेंस ज्यादा हो रहा है, इवेपोरेट कम, तो धीरे धीरे करते 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 फिर से रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन के बराबर आ जाएगा और फिर से कंसंट्रेशन वही पुराने वाला बन जाएगा। मतलब कि एक बार को आपने प्रेशर चेंज कर दिया, लेकिन जब आप रुकोगे तो धीरे धीरे ये प्रेशर फिर से वही आ जाएगा। मतलब कि फिर से ये बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। लेट अस से आपने पिस्टन को ऊपर मूव कर दिया, खींच दिया ऊपर। अब खींच दिया तो कंसंट्रेशन एकदम से कम हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन फिर चेंज नहीं हुआ है, वो फिर वहीं का वहीं है, रेट ऑफ कंडेंसेशन कम हो जाएगा। मतलब कि फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन लेवल पे बढ़ेगा और फिर से वो सेम कंसंट्रेशन आ जाएगा, यानी कि फिर से वो एक इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। याद रखना, इक्विलिब्रियम इंस्टेंटेनियस नहीं होता, इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है, वो इंस्टेंटेनियस नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यू विल हैव टू वेट। ऐसे नहीं, ऐसे क्या सर देखो प्रेशर कम हो गया, अरे यार होगा, वेट, रुको यहां पर, एंड देन सडनली इट विल मूव टू द सेम लेवल, धीरे धीरे सेम लेवल पर जहां पे वो था। अब फिर दबा दोगे, फिर सर ज्यादा हो गया,
ज्यादा हो गया, एग्री, रुको, फिर से उस लेवल पे आ जाए। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस से वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इसको यहीं फिक्स करके हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ कंडेंसेशन पे कोई असर नहीं होगा। हुआ क्या? रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, फिर से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फिर से रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा, फिर से एक बार बैलेंस हो जाएगा, बट इट विल बी बैलेंस एट अ हायर वैल्यू। ठीक है? मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो प्रेशर है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेपर्स है, ये कंडेंसेशन के रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि कंडेंसेशन का रेट तो ऑटोमेटिकली बैलेंस करेगा किसको? रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन पे डिपेंड कर रहा है। सो दिस प्रेशर दैट विल बी क्रिएटेड बाय द वेपर्स on the surface of the liquid and the walls of the container in a closed container will depend on the temperature and nature, and it will be a constant till the temperature and the nature remain the same. ठीक है? इस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। रेट ऑफ कंडेंसेशन चेंज हो रहा है। रेट ऑफ कंडेंसेशन क्यों चेंज हो रहा है? रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज होगा विद टेम्परेचर, और रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन को चेंज करेगा। ठीक है? क्योंकि कंडेंसेशन का रेट ऑफ इवेपोरेशन से भी सच में कोई लिंक नहीं है, उसका सीधा सीधा कंसंट्रेशन से लिंक है। इज इट क्लियर? समझ आई ये बात? ठीक है? तो जरा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है। देखो, वेपर प्रेशर एंड द प्रेशर ऑफ वेपर दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेशर ऑफ वेपर चेंजेबल है, वेपर प्रेशर नहीं। देखिए, वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid, the pressure exerted by the vapors of a liquid on the surface of the liquid and the walls of the container, on the surface of the liquid and the walls of the container in a closed container, at a constant temperature, at equilibrium, is termed vapor pressure. ठीक है? It depends only on nature of the liquid and temperature. ठीक है? Vapor pressure cannot be measured in the open container. It has to be a closed container. क्योंकि ओपन कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम ही नहीं आएगा। ठीक है? तो वेपर प्रेशर एक्चुअली इज द मेजर ऑफ एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सीधा सीधा रेट ऑफ इवेपोरेशन पे डिपेंडेंट है। क्लियर? तो अगर हमें मान लीजिए किसी ओपन कंटेनर में भी एस्केपिंग टेंडेंसी की बात करनी हो, तो तब भी हम उसके वेपर प्रेशर की बात करते हैं। जिस सब्सटेंस का हम बोलते हैं यार ये बहुत वोलाटाइल है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, अरे ओपन कंटेनर, फिर भी हम वेपर प्रेशर बोल रहे होते हैं। वोलाटाइल है, वोलाटाइल का मतलब इसकी टेंडेंसी टू इवेपोरेट ज्यादा है, और वो एक जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है टेंडेंसी ऑफ इवेपोरेशन का, वो वेपर प्रेशर है। इज इट क्लियर? किसी को इस बारे में कोई कंफ्यूजन? दिस इज व्हाट वी कॉल एज वेपर प्रेशर। तो ये है हमारे पास फेज इक्विलिब्रियम। यहां पे हमने लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की बात की। इसी तरीके से हमारे पास सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम होता है, दैट इज एट द मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सबलिमेशन। ठीक है, तो ऑल दीज आर फेज इक्विलिब्रियम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पर हमारे पास सेम केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, अभी तक जो भी हमने किया है उसमें कुछ पूछना है? समझ में आया? So condensation categorization depend करती है, particles की categorization कम होगी strike करने से, उससे rate of condensation को effect होता है। कम क्यों होगी? आपने कहा rate of evaporation। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन तो फिर वो टेम्परेचर डिपेंड कर दिया ना आपने। हाँ, सरफेस का टेम्परेचर अगर आप कम कर देते हो तो रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ना, काइनेटिक एनर्जी तो वहीं की नहीं है। क्यों? सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल सरफेस पे ज्यादा नहीं होंगे? रेट नहीं चेंज होगा। रेट का मतलब क्या है? सरफेस एरिया से डिवाइड कर दिया ना, तो फिर सरफेस एरिया पे डिपेंड क्यों करेगा? कितना ही सरफेस एरिया लूंगा तो मैं उतना ही ना, तो मुझे टोटल सरफेस से क्या करना? उतने सरफेस से मतलब है जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? कंसंट्रेशन ये है कि कितने मॉलिक्यूल निकल रहे हैं इसमें। कंसंट्रेशन मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, निकल रहे हैं नहीं, वो रेट ऑफ इवेपोरेशन है। अच्छा, एक बल्क में कितने मॉलिक्यूल वो इस पूरे ऊपर जो है कितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हैं, वो कंसंट्रेशन है। वेपर फेज में, लिक्विड फेज में, वेपर में तो वही होता है ना, जितने निकल रहे हैं मतलब निकल के वहां पे पहुंच गए, वही तो फिर वो कितने है हुआ ना, वही तो बात हुई। मैं समझ गया, दूसरों को कंफ्यूज कर दिया। मैं समझा भाई। इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं वो कंसंट्रेशन है, कितने आ रहे हैं। ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन कितने आ रहे हैं उससे बनेगा, लेकिन कितने आ गए हैं वो कंसंट्रेशन है। ठीक है, so here we have talked about the phase equilibrium, and now we are going to get along with something called chemical equilibrium. Okay? Chemical equilibrium obviously is going to be a situation in which the left hand side and the right hand side of the equation have different chemical entities, different compounds which have different chemical nature. That will be termed as chemical equilibrium. The definition is the equilibrium in which the left and the right side of the equilibrium equation, the left and the right side of the equilibrium equation represent different chemical compounds is termed chemical equilibrium. Compounds or chemical entities is termed chemical equilibrium. ठीक है, क्लियर? तो अब जरा हम केमिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअली दो अलग अलग रिएक्शन से बनता है। ठीक है, हमारे पास एक रिएक्शन है A of A plus B of B gives us C of C plus D of D। एक कॉमन इक्वेशन लिखी जाती है, आपको कुछ भी लिखना लिख लो, PQRS लिखना है वो लिख दो, XYZ लिखना लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहां पे एक जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये A और B कॉन्टिन्यूअसली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते चले जा रहे हैं और C और D बना रहे हैं। ठीक है, ये कॉमन रिएक्शन हुआ। इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम ये है कि ये C of C प्लस D of D एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके
कॉन्टिन्यूअसली ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी ही बना रहे हैं। मतलब ये रिएक्शन भी हो रहा है और ये रिएक्शन भी हो रहा है। जैसे रेट ऑफ इवापोरेशन था ना और रेट ऑफ कंडेंसेशन था, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन मजेदार बात यह कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि दूसरी कोई चीज हो रही है। ठीक है, अब ये रिएक्शन है, हमने मान लो रिएक्टेंट मिक्सचर के अंदर ए और बी डाल दिए, सी और डी नहीं डाले, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। हम डाल भी सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विलिब्रियम हम किसी भी डायरेक्शन से लेके जा सकते हैं। जैसे कि एक कंटेनर खाली है, हम उसके अंदर वेपर डालते चले जा रहे हैं, अब वेपर डालते चले जाएंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते वो वेपर प्रेशर के बराबर पहुंचेगा। उसके बाद जब वेपर डालोगे तो वेपर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर नहीं जाएगा कभी भी, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, और वो कंडेंस होते होते आपको लिक्विड मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि डाल आप वेपर रहे हैं, मिलेगा आपको लिक्विड, क्योंकि इक्विलिब्रियम बन गया। तो आप वेपर साइड से भी आ सकते हैं, और लिक्विड साइड प्योर लिक्विड डाल दिया, खाली वैक्यूम कर दिया तो वेपर बन जाएंगे। मतलब कि इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है, प्रोडक्ट से या रिएक्टेंट से, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपकी मर्जी है, जिसे मर्जी मान लो। तो यहां पर हमने ये लिया, रिएक्टेंट डाल दिए, रिएक्शन शुरू हो गया, रिएक्शन शुरू हुआ, सी और डी बनने शुरू हुए। ठीक है, ए और बी कम होने शुरू हुए, सी और डी बढ़ने शुरू हुए। तो जैसे जैसे ए और बी कम होना शुरू होगा, उसका रिएक्शन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। सी और डी जैसे बढ़ेगा, उसकी रिएक्शन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना सी और डी रिएक्ट करके ए और बी बना रहे हैं, उतना ही ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं। दोनों इंडिपेंडेंट है, किसी को पता ही नहीं हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी एक बैलेंस आ गया। एंड एट दैट पॉइंट द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, सी एंड डी बिकम्स अनचेंजिंग। कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, लेकिन नेट चेंज जीरो है। Then it becomes equilibrium. ठीक है, क्लियर? तो यहां पर या तो आप ऐसे दो इक्वेशन लिख दो, ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, सी और डी रिएक्ट करके ए और बी बना रहे हैं, या फिर यार दो इक्वेशन कौन लिखे? मुझे तो तीन लिखनी पड़ रही है, लेकिन हम लिखना प्रेफर करते हैं एक, where we say A of A plus B of B react to form C of C plus D of D. C of C plus D of D react to form A of A and B of B. ध्यान रखना, ये दोनों एरोज अगर बराबर हैं तो इट रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम। अगर तुमने एक छोटा एक बड़ा बना दिया तो इट विल रिप्रेजेंट कि फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, फॉरवर्ड ज्यादा बैकवर्ड कम है। ठीक है, और सिंगल एरो का मतलब है कि बैकवर्ड इतना कम है कि हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्ट, बेटा दोनों रिएक्टेंट है और दोनों प्रोडक्ट है। ये सिर्फ हमारा कन्वेंशन है कि जो लेफ्ट साइड पे हम उसको नाम दे देते हैं रिएक्टेंट, जो राइट साइड पे हम नाम दे देते हैं प्रोडक्ट। नाम है ये। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नाउ जब हम इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो यहां पर कुछ स्पीड ऑफ रिएक्शन, जैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन की बात मैंने बोली थी ना, और रेट ऑफ कंडेंसेशन की बात बोली, दो अलग अलग रिएक्शन थे। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी दो अलग अलग रिएक्शन है, दो अलग अलग रिएक्शन का रेट है। एक है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, जैसे कि इवेपोरेशन की बात की, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। उसी तरीके से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और उस नेचर में इनका अमाउंट भी आ जाता है। इस नेचर में इनका अमाउंट भी आ जाता है। ठीक है, तो वन साइंटिस्ट आफ्टर ऑब्जर्विंग दीज रेट ऑफ रिएक्शन, he suggested that these rate of reaction depend on the active masses
of the reactants. The rate of reaction depends on the product of active masses of the reactants. Okay? This person, there were two people. This is called the Goldberg and Waage law, and commonly called law of mass actions. Okay? A reaction is written such that it represents the factors affecting the rate. ध्यान रखना इक्वेशन, हर इक्वेशन को आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन में नहीं लिख सकते. हर इक्वेशन में इक्विलिब्रियम नहीं आता. तो कुछ एक इक्वेशन है जिनमें इक्विलिब्रियम आता है और उनको लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है. ठीक है? So the equations are written such that they represent the factors which affect the rate, including the stoichiometric coefficient. वो भी specifically लिखे जाते हैं. Now the rate becomes dependent on the concentration of each species written in the equation and their stoichiometric coefficient. ठीक है? Is it okay? If the equation is written in such a manner, we say that the rate of reaction depends on, or it is proportional to, the product of the concentration of the reactant raised to power their respective stoichiometric coefficients. ठीक है? Is it okay? अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिख लो. और हाँ, ये जो चीज मैं बोल रहा हूं वो आपकी किताब में नहीं लिखी हुई है. ठीक है? इसे आराम से तसल्ली से समझ लेना. किताब की लैंग्वेज आराम से समझ में आएगी, उसमें कुछ नहीं है, पर ये बैकग्राउंड है. ठीक है? ठीक है, लिखो. गोल्डबर्ग एंड वागे लॉ, द लॉ ऑफ मास एक्शंस. The rate of a reaction, the rate of a reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactants. Is directly proportional to the product of active masses of the reactants. Okay, full stop. If the equation is such that, if the equation is written such that it represents the factors affecting the rate of reaction, then the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of the reactants is directly proportional to the product of the concentration of the reactants raised to the power their respective stoichiometric coefficients. Stoichiometric coefficient. These numbers which are used to balance the equation are termed stoichiometric coefficients.
स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट रिएक्शन की बात करते हैं, दिस इज द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, this is going to be proportional to the concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power B. ठीक है, in the same manner we can even talk about the constant reaction from C to C, D to D to A and B. इसको हम नाम देते हैं बैकवर्ड रिएक्शन का। हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट से रिएक्शन बन रहा है, तो हमने इसको नाम दे दिया बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम के लिए कोई फॉरवर्ड कोई बैकवर्ड नहीं, उसके लिए दो रिएक्शंस है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोल दिया। ठीक है।